start your one-day online university level guest lecture. Please, Nilkesh. Sir, am I audible? Yes, sir. You Hello? are audible. Okay, Yes, sir. okay, You are okay. audible. Please continue, sir. Nilkesh. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sorry for disturbance. Thank you, Kade sir. Thank you, Kumbare sir. Without wasting time, we directly come to the today's topic. Today's delivered topic is stereochemistry, and this is my short introduction. I'm Nilkesh Durve, Assistant Professor, Department of Chemistry in Sri Pundalik Maharaj Mahavidyalaya, Nandura. डायरेक्टली तीनों लैंग्वेज में बात करेंगे स्टूडेंट के साथ. This is my contents of this lecture. First part is the optical isomerism, second one is a geometrical isomerism, and third one is a conformational isomerism. सबसे पहला सवाल आता है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री होता क्या है. स्टीरियोकेमिस्ट्री, it is a spatial arrangement of the atom. Simply उसको बोलेंगे क्या कि spatial arrangement of that atom in the molecule. तो देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉर एग्जांपल उसमें कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, कायरल सेंटर होता है. तो देखो ये जो मिरर दिख रहा है, या मतलब यहाँ पे जो हैंड दिख रहा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, they are the mirror image of each other, but they are not superimposable. Such type of molecules is known as chiral. और यहाँ पे सॉक्स का जो एग्जांपल दिया है, they are superimposable, तो उसको chiral बोलेंगे. It is comes under this terminology comes under the stereochemistry. हमें stereochemistry की जरूरत क्या है? Why we need the stereochemistry? देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सेल्यूलोज और स्टार्च का, सेल्यूलोज और स्टार्च के स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे जो रेड कलर में दिख रहा है बॉन्ड, टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, एंड यहाँ पे देखो ब्लू कलर और रेड कलर का. ब्लू कलर का जो एक्सियल बॉन्ड है और ये इक्वेटोरियल, रेड कलर का जो है इक्वेटोरियल बॉन्ड है. तो स्ट्रक्चर में देखो सिर्फ पोजीशन में डिफरेंस है, बाकी ऑल ओवर स्ट्रक्चर आर सेम. और एक छोटे से चेंजेस की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. Due to this difference in stereochemistry, humans can metabolize starch for energy, but we cannot digest the cellulose. Another example is malic acid and fumaric acid. The their chemical formula, structural formula are same, but spatial arrangement is different. Due to this difference in stereochemistry, their chemical property is changed. Malic acid is essential for plants and animals, and toxic. Fumaric acid is toxic to tissue. तो इसलिए हम स्टेरियोकेमिस्ट्री स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल जुड़वा मूवी आपने देखी होगी. जुड़वा मूवी में देखो, जुड़वा मूवी में जो दोनों भाई रहते सलमान खान, एक का कैरेक्टर अच्छा रहता है और एक जो है चोरियां करता है, लेकिन दोनों भी दिखने में सेम है.
तो हम उस सेम स्ट्रक्चर से कंफ्यूज नहीं होना है। देखो स्पैटियल अरेंजमेंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पैटियल अरेंजमेंट की वजह से उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होती है, जिस तरह से उनके कैरेक्टर भी अलग अलग रहते हैं जुड़ाव मूवी में। तो इसलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री जरूरी है। How this affect or control their reactivity. Another definition of the stereochemistry is the branch of chemistry that involves the study of different spatial arrangement of atom in a molecule. यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये कायरल कार्बन सेंटर है और यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, and this is the mirror image of that molecule, and they are not superimposable. This is the enantiomer. Later we will discuss detail. Now come to the isomerism. Isomerism, it comes from the Greek word isos, means equal, and meros means part. The compound having the same molecular formula but different physical and chemical properties are called as isomers of each other, and phenomenon is known as isomerism. यहाँ पे देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है और स्टेरियो आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इट इज आल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर में देखो उसके आईपीएसी नेम जो है वो डिफरेंट होती है. केमिकल फार्मूला सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट जैसे ही हम उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस करेंगे उसके आईपीएसी नेम भी बदलता है. जैसे कि यहाँ पे पेंटेन है, यहाँ पे आइसोपेंटेन, यहाँ पे नियोपेंटेन. लेकिन स्टीरियो आइसोमर में उसके आईपीएसी नेम सेम होती है एक्सेप्ट प्रीफिक्स. यहाँ पे देखो उसका ब्यूटीन ब्यूटीन. स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो किसी तरह का राइटिंग ना करे स्क्रीन पे. डोंट राइट ऑन स्क्रीन. ओके. और स्टीरियो आइसोमर्स में उनका आईपीएसी नेम जो सेम होता है एक्सेप्ट प्रीफिक्स, एंड ऑलवेज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप. इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो सकता है, जैसे कि अल्कोहल और इथर का एग्जांपल है. वहां पे अल्कोहल और इथर दोनों अलग फंक्शनल ग्रुप है और सेम भी हो सकते हैं फंक्शनल ग्रुप. लो यस. Yes, continue, sir. ओके. यहाँ पे तो कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम आइसोमर बोलेंगे. अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होगा तो उससे हम क्या बोलेंगे, उसे हम आइसोमर नहीं बोलेंगे. एंड नेक्स्ट, डू द कंपाउंड हैव द सेम कनेक्टेड इन द सेम ऑर्डर. हैव द सेम एटम कनेक्टेड इन द सेम ऑर्डर. अगर सेम ऑर्डर में कनेक्टेड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे. और सेम ऑर्डर में सेम कनेक्टिविटी नहीं होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर. यहाँ पे देखो ये अल्कोहल का एग्जांपल है और ये इथर. यहाँ पे सेम कनेक्टिविटी नहीं है और इसमें क्या होता है, सेम कनेक्टिविटी होती है. कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, देन पोजिशनल आइसोमर एंड स्केलेटर. इट इज आल्सो नोन एज चेन आइसोमर. फंक्शनल आइसोमर में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो
डिफरेंट होता है। यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे इथर है। पोजिशनल आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, केमिकल फार्मूला भी सेम होता है, बट पोजिशन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। और स्केलेटल आइसोमर में यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल चेन है, Sir, please continue. चलो हाँ, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट। सॉरी मेरे थोड़ा नेटवर्क इश्यू था। Yes. हेलो, नाउ एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Please continue. Thank you, sir. Then another isomer is stereoisomer. Stereoisomer, can the compound be interconverted by rotation about single bond? अगर रोटेशन कर अगर इंटरकन्वर्ट होता है तो उसे हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमर बोलते हैं। अगर उसमें रोटेशन अलाउड नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो उसको कॉन्फिगरेशनल आइसोमर बोलते हैं। इसमें सिस ट्रांस और ऑप्टिकल आइसोमर्स है, डायस्टेरियोमर्स, एनाइसोमर्स। ये सभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 1 by 1। Now first we are discuss the constitutional isomerism. यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को एग्जाम्पल, ये constitutional isomerism के एग्जाम्पल है। What is the constitutional isomerism? The compound having the same molecular formula but different structural formula are called as structural or constitutional isomers of each other, and the phenomenon is known as constitutional isomerism. Constitutional isomerism के कुछ टाइप्स है: चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। 1 by 1 डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। Functional isomerism, the compound that have same chemical formula but different functional group attached to them. Such compound is called as functional isomerism, और इस phenomenon को हम क्या बोलेंगे? functional isomerism. देखो प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉल में देखो, प्रोपेनॉल में यहाँ पे अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे कीटोन। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन वह क्या है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अनदर एग्जांपल इज इथेनॉल एंड मिथॉक्सी-मीथेन। हियर द अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप एंड हियर ईथर फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या है? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। The next, positional isomerism, the compound that have same chemical formula but the position of the functional group or substituent atom are different. उसको हम पोजिशनल आइसोमर बोलेंगे और उस फिनोमिनन को हम बोलेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे देखो 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे क्या है? जो क्लोरीन है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरीन, उसका पोजीशन यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, और जो दूसरा एग्जांपल है वहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है। और ये जो डाइक्लोरोबेंजीन दिख रहा है आप लोगों को,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्लोरीन जो ऑर्थो पोजीशन पे है और यहाँ पे पैरा पोजीशन। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं उनका पोजीशन डिफरेंट होता है। Next, chain or nuclear isomerism. The compound that have same chemical formula but differ in the branching of carbon chain. जिस कंपाउंड में ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट होता है, उस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उसे हम चेन आइसोमर्स बोलते हैं, और उस फिनोमिनन को हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे देखो एन ब्यूटेन सिंपल अल्केन है और ये ब्रांच अल्केन, जहाँ पे एक मिथिल ग्रुप जो है वो सेकंड पोजीशन पर गया है, आइसोब्यूटेन। फिर यहाँ पे पेंटेन के कुछ एग्जांपल है, एन पेंटेन सिंपल चेन है, आइसोपेंटेन में एक मिथिल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर आ गया, और नियोपेंटेन में दो मिथिल ग्रुप जो है वो सेकंड पोजीशन पर आ गए। तो इस टाइप के जो आइसोमर्स होते हैं इसे हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स बोलेंगे। नेक्स्ट इज मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म, the isomers differing in the distribution of alkyl group around a central atom or are called as metamerism. अब मेटामेरिज्म और पोजिशनल आइसोमर में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? माझा आवाज येतो का सर? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म में देखो, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्किल ग्रुप है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे CH2 CH3, ये मिथाइल प्रोपेनोएट हो गया, और यहाँ पे देखो CH3 इधर आ गया और CH3 CH2 इधर आ गया, तो इथाइल इथोनेट, इथेनोएट। तो इस टाइप की जो एग्जांपल आइसोमर्स इस टाइप की जो आइसोमर्स होते हैं उसे हम मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो पेंटेन 2-on और पेंटेन 3-on। इसमें देखो इधर CH3 CH2 है और इस साइड में CH3 CH2 सेम, लेकिन जो पेंटेन 2-on में इधर CH3 और इधर CH2 CH2 CH3। तो इस टाइप के एग्जांपल यहाँ पे क्या है, जो अल्किल ग्रुप है वो डिफरेंट है, जो सब्स्टिट्यूटेड अल्किल ग्रुप है वो डिफरेंट है। तो इतना याद रखना है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्किल ग्रुप और पोजिशनल आइसोमेरिज्म में सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप। देन नेक्स्ट इज टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म। टॉटोमराइजेशन ये आप लोगों को पता ही होगा, एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन एक्सचेंज की वजह से वहां पे टॉटोमराइजेशन होता है। तो उस टाइप के जो एग्जांपल्स है, प्रोटॉन एक्सचेंज करके जो का फंक्शनल ग्रुप चेंज करते हैं या स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, द कंपाउंड ऑफ द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड विच ओनली डिफर इन द पोजीशन ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, such type of compounds is known as tautomers. For example, keto from acetone and enol from acetone. ये दोनों भी एसीटोन मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनका टॉटोमराइजेशन होता है। तो इस कीटो फॉर्म का टॉटोमर इनोल फॉर्म है, इसको हम टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म बोलेंगे। Now we are come to the stereoisomerism. Stereoisomerism. Stereoisomerism, two or more different compound having same molecular formula but different structural arrangement of their atom or group of atom in 3-dimensional
आर कॉल्ड एज स्टेरियो आइसोमरिज्म। मतलब ये जो कंपाउंड है उसका स्पेटियल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होता है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे? स्टेरियो आइसोमरिज्म। उनका केमिकल फार्मूला या आईपीएससी नेम सेम होता है। ये दूसरा एग्जांपल है स्टेरियो आइसोमरिज्म का। इसमें देखो ये जो ग्रीन कलर के ये एक दूसरे के अपोजिट, यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट में, यहाँ पे सेम साइड में है, यहाँ पे भी सेम साइड में, यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट में। तो ये एक दूसरे के क्या है? स्टेरियो आइसोमर्स है। तो इस टाइप के आइसोमर्स को हम स्टेरियो आइसोमर्स बोलेंगे। द आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप। Next type of stereoisomers, first is a geometric isomers and another one is a optical isomers. अब geometrical isomers में cis isomers है, trans isomer, optical isomers में enantiomers, ये उसके एग्जांपल्स हैं। दिस इज cis isomer, क्योंकि ये जो एटम है तो दोनों भी सेम एटम जो सेम साइड में है, और यहाँ पे डिफरेंट साइड में, अपोजिट साइड में है, इसलिए इसे हम ट्रांस आइसोमर बोलेंगे और इसे cis आइसोमर बोलेंगे। और इस केस में ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये जो प्लस और माइनस है, ये जो पोलरिमीटर है उससे हम निकालते हैं। हम ऐसे स्ट्रक्चर देख के प्लस और माइनस बता नहीं सकते, लेकिन एल और डी हम बता सकते हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे तब। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये आता है कि ड्राइंग कन्वेंशन स्टेरियोकेमिस्ट्री, इसकी क्या जरूरत है? तो देखो, जब भी हम कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो परफेक्टली ड्रॉ करना चाहिए। जैसे कि ये जो लाइन दिख रहा है, हाँ, जो लाइन है वो क्या इंडिकेट करता है? इन द प्लेन ऑफ पेज। और ये जो डार्क डैश लाइन दिख रहा है वो कम फॉरवर्ड, मतलब इन फ्रंट आपके तरफ दिखेगा। और जो डैश डैश लाइन दिख रहा है वो बैकवर्ड। और एक चीज याद रखना है कि ये जो इस तरह से डैश लाइन जो लिखते हैं उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये पार्शियली मेड है एंड इट इज यूज्ड फॉर पार्शियली ब्रोकन बॉन्ड्स इन अ ट्रांजिशन स्टेट। जब हम SN2 में जब ट्रांजिशन स्टेट निकालते तो वहां पे हम पार्शियल बॉन्ड यूज करते हैं। हाँ, मतलब ये क्या इंडिकेट करता है? पार्शियली ब्रोकन बॉन्ड। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो यहाँ पे करेक्ट वे इस तरह से, अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो इस तरह से ड्रॉ करना है। ये जो ये जो लाइन दिख रहा है वो इन प्लेन, और जो डार्क लाइन दिख रहा है वो इन फ्रंट, और ये बैकवर्ड। अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो देखो, एक बैकवर्ड में जाएगा, एक फ्रंट में, और जो दो बॉन्ड है वो इन प्लेन आएंगे। अगर इसको उल्टा करोगे तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, या फिर थोड़ा रोटेट करोगे इस तरह से, लेकिन इस तरह से ड्रॉ नहीं करना है। इस तरह से ड्रॉ नहीं करना है, ये इनकरेक्ट वे है। ड्राइंग कन्वेंशन का इनकरेक्ट वे है। तो आप लोगों को इस तरह से ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर
जब भी आप स्टीरियोकेमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो इस तरह से, जैसे कि हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर देखे, अगर वैसे स्ट्रक्चर निकाल कर आप अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहोगे तो निकलेगा नहीं। उसके लिए इस तरह के ड्राइंग कन्वेंशंस आपको आना जरूरी है। तो हम इसके कुछ टाइप्स देखेंगे ड्राइंग कन्वेंशन के। ड्राइंग कन्वेंशन इन स्टीरियोकेमिस्ट्री, देखो यहाँ पे प्रिफरेबल स्ट्रक्चर इस तरह से है, तो इसको हम अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाकर अगर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ पे भी देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर दिखानी है तो वेज डैश फार्मूला यूज करना पड़ेगा। हेलो, 1 minute, नीलकेश दुर्गे सर, 1 minute. हॅलो मुलांनो, 4 मिनिटाच्या नंतर ही लिंक एंड होईल. परत याच लिंकवर क्लिक करून परत रिजॉईन व्हायचे. सर्व मुलांनी 4 मिनिटाच्या नंतर याच लिंकवर क्लिक करून परत रिजॉईन व्हायचे. हीच लिंक 4 मिनिटांनी परत कंटिन्यू होईल. ठीक आहे, प्लीज कंटिन्यू दुर्गे सर. ओके ओके, थैंक यू सर। अब देखो ये प्रिफरेबल, ये सिंपल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाई नहीं है, लेकिन अगर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखानी है तो फिर उसको हमें वेज डैश फार्मूला में डालना पड़ेगा। अब देखो ये जो हम बॉन्ड का मतलब ड्राइविंग कन्वेंशन यूज कर रहे हैं वो रिंग में हम इस तरह से नहीं बता सकते इसको। ये नॉट एक्सेप्टेबल। फिर देखो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें भी हम ड्राइविंग कन्वेंशन इस तरह से बता सकते हैं, इस तरह से नहीं। देखो डबल बॉन्ड में जनरली हम जो भी sp2 या sp हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं तो वो उसको हम प्लेनर स्ट्रक्चर ही बताते हैं, लेकिन अगर उसको थोड़ा ट्विस्ट करेंगे वे फ्रॉम द एज ऑफ ट्राइगोनल प्लेन, तो इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि पाइस्केलेटन ऐसे वर्टिकल पोजीशन पर आ गया तो हमें जो ये जो एटम है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे दिखेंगे, और फिर 2 हाइड्रोजन हमारी तरफ दिखेंगे इन फ्रंट, एंड 2 हाइड्रोजन जो बैकवर्ड दिखेंगे। तो उसमें कुछ टाइप्स है। पहला आता है पर्सपेक्टिव फार्मूला, जिसे हम वेज डैश फार्मूला भी बोलते हैं। तो देखो वेज डैश फार्मूला में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 जो एटम है वो इन प्लेन, और बाकी के जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स है उसको हम वेज डैश में दिखाएंगे। एक इन फ्रंट, और जो डैश डैश लाइन में होता है वो बैकवर्ड। यहाँ पे और कुछ एग्जांपल है। इथेन, देखो ये HCCH ये इन प्लेन है, ये 2 हाइड्रोजन इन फ्रंट और ये 2 हाइड्रोजन बैक साइड में। उसी का सेम एग्जांपल उसको रोटेट करके लिया है। यहाँ पे देखो इन प्लेन, और ये 2 हाइड्रोजन जो डार्क लाइन से जो दिखाया वो इन फ्रंट, और जो डैश लाइन से वो बैकवर्ड। अनदर एग्जांपल इज ब्रोमो मीथेन। ब्रोमो मीथेन में देखो आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हो, HCBr बॉन्ड को एक ही प्लेन पे ले सकते हो। ओके सर, अभी 2 मिनट के लिए स्टॉप करता हूँ मैं। हेलो, हाँ सर,
कंटिन्यू। हाँ 2 मिनट के लिए स्टॉप करता हूँ, रिकवरी करना है ना फिर से।